Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. This is simultaneous equations, the topic which we'll be studying in our additional mathematics class. The purpose of this video was to show you the book which we'll be following inshallah. This is the new additional mathematics book. The writer is Hu Song Thong, and this book was mentioned in the book list, so you have to buy this book and we'll be following this book inshallah. Since it is the start, I know that many of you didn't have these books. आप लोगों ने ये अभी तक नहीं ख़रीदी होगी. So I decided to make a video on it so that our class can be smoothly run. ताकि ये वीडियो आप लोग के सामने हो तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारे पास बुक्स नहीं है तो हम लोग को कुछ हम लोग कैसे जो है वो इसको फॉलो करेंगे. सो आई हैव डिसाइडेड कि एक वीडियो हो जाए ताकि ये चीज़ें आपके सामने हो तो हम लोग इसको जल्दी से डिस्कस भी कर लेंगे. Simultaneous equations is not a new topic for you guys. You have learned this topic extensively in grade 8. Grade 8 में हमने ये टॉपिक बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था एंड वी डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर आवर प्रैक्टिस. अभी एडिशनल मैथमेटिक्स में साइमल्टेनियस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज़ जस्ट द ओल्ड रिविजन. थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा ताकि हम लोग अपनी पुरानी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे उनको क्लियर कर सकें. सो we'll be डिस्कसिंग दिस एग्जाम्पल इंशाल्लाह. और ये एग्जाम्पल जो है वो इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इक्वल्स टू का साइन नज़र आ रहा है और ये लीनियर इक्वेशंस हैं बिकॉज वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज़ 1. वेरिएबल के ऊपर आपको 1 के अलावा कोई और पावर नहीं नज़र आ रही. इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं और ये चूँकि दो इक्वेशंस एक साथ लिखी हुई हैं तो these are simultaneous linear equations and the question is that we have to solve the simultaneous linear equations and you know that solve means we have to find the value of x and y. हमेशा सॉल्व का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. यहाँ दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई है तो हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. और द लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी हैव टू इक्वेशंस. हमारे पास दो इक्वेशंस क्यों हैं? बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स सो दैट if whenever you have to find the value of two variables you will always be given with two equations. जितने variables होते हैं उतनी equations होती हैं. अगर दो variables हैं तो आपके पास एटलीस्ट दो equations होनी चाहिए उनको solve करने के लिए. So these are simultaneous linear equations in two unknowns. Two unknowns means two variables and there are two methods for solving this. The first one is the substitution method and the second one is the elimination method. You guys know them already very well. मैं दोनों मेथड से इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा ताकि थोड़ा सा रिविजन हो जाए. So starting with the question, we have a question in which we have two equations. The first one is 2x plus 3y equals to 7. This is our equation number 1. And the second is 3x minus 4y equals to 2. This is our equation number 2. We have to solve these two simultaneous equations and we have to find the value of x and y. The first method is substitution method. We'll be solving it with both the methods. So you know that in substitution method I have to pick an equation. Out of these two equations I have to pick one. So I am going with equation number 1. I am picking equation number 1 and the variable is x. So I have to make x as my subject. So I am picking equation number 1 and I am choosing x. So I need to make x as the subject, means I have to make sure everything which is with x has to move on the other side. जो चीज़ें x के साथ हैं उनको दूसरी साइड पे इक्वेशन की मुझे भेजना पड़ेगा. तो सो दैट x शुड बी अलोन इन वन साइड, ठीक है. तो x इज इक्वल्स टू, पहले ये 3y था प्लस का तो ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस 3y हो जाएगा और फिर ये x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस 2 विल बी डिवाइडेड ऑन द अदर साइड. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 7 माइनस 3y अपॉन 2. दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती थी, आप लोग को पता है ये बात, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है. नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू अब मेरे पास आ चुकी है. चूँकि मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट किया है तो मैं इसको अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, ठीक है. यहाँ मैंने लिख दिया है कि सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. ये जो वैल्यू ऑफ x मुझे फाइंड आउट किया है मैंने, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे पुट कर दूंगा. तो x की जगह पे पुट करने का मतलब क्या है कि 3 विल बी एज इट इज़. द वैल्यू ऑफ x जो कि मैंने अभी फाइंड आउट की है पूरी ब्रैकेट में मैंने लिख दी 7 माइनस 3y अपॉन 2 और फिर इक्वेशन जो बाकी की इक्वेशन है वो एज इट इज़ मैंने इसके आगे लिख दी. उसको मुझे चेंज करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है. माइनस 4y इक्वल्स टू 2 एंड इक्वल्स टू 2. दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 लिखने की इसको ज़रूरत नहीं थी लेकिन इन्होंने यहाँ मैंशन कर दी है. नो नीड टू राइट इक्वेशन नंबर 4, ठीक है.
अच्छा, अब उसके बाद जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी कि ये जो 2 है ये 7 माइनस 3y के नीचे है, 4y के नीचे 2 नहीं है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। 4y के नीचे इस वक्त कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि 4y के नीचे 1 है। तो आपको पता है फ्रैक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, एलसीएम। तो मुझे एलसीएम यहाँ लेना पड़ेगा। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ चूँकि 1 था तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस 4y विल बी इक्वल्स टू 8y, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ये उसने डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है। ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया, उसने यहाँ लिख दिया है कि मुझे यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया है, क्योंकि इसने लिख दिया है कि वी हैव मल्टीप्लाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 4। मैंने इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे इसको एलसीएम लेना है। तो जब मैं इसको एलसीएम लूँगा उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन हो गई, ठीक है। ये 4y था, अब ये 8y बन गया है। दिस इज़ 3 ब्रैकेट में 7 माइनस 3y माइनस 8y इक्वल्स टू 4। ये 4 कैसे आया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 था और वो दूसरी साइड पर जाके 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ उसने एक स्टेप मिस किया, उसने डायरेक्टली किया, इस वजह से जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। और उसके बाद जब इसको वो सिंप्लीफाई करेगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 1 आ गई। अब जब y की वैल्यू 1 आ गई है तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में y की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड द वैल्यू ऑफ y इज़ 1 एंड द वैल्यू ऑफ x इज़ 2, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके क्या यही दो वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए यू गाइस नो दैट यू हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट वन वेरिएबल यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट सेम। आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए आपको ये देखना होता है कि दोनों के कोफिशिएंट जो वेरिएबल आप एलिमिनेट कर रहे हो उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो आपने जो है वो सबसे पहले y को पिक कर लिया इसने। आपने कहा कि मैं एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ y को, ठीक है। आपको पहले एक वेरिएबल पिक करना पड़ता है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए y के साथ जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशंस में सेम होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, अभी सेम नहीं है। तो सेम जो है उसको सेम करने के लिए मेरे पास क्या ट्रिक थी कि मैं दोनों इक्वेशंस में जो y के कोफिशिएंट थे उनको स्वैप कर देता था। 4 को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता था, और चूंकि इसके साथ 3 है तो 3 को नीचे वाली इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही यहाँ लिखी है ट्रिक, ठीक है। हम कोफिशिएंट्स को स्वैप कर देते थे। तो यही ट्रिक जो है वो हम एलिमिनेशन में यूज़ करेंगे। जब आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8x, और फिर जब आप 4 को 3 से करोगे तो 4 3 ज़ा 12y, और जब आप 4 को 7 से करोगे तो 28 हो जाएगा। तो ये मेरी न्यू इक्वेशन बन गई जिसको मैंने 3 का नाम दे दिया। और नीचे वाली इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 ज़ा 9, तो 9x आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़, और 3 4 ज़ा 12, तो 12y आ गया, इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। सो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 में अब आप देखोगे कि y के जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं। तो अब आप साइन देख लो, साइन दोनों के ऑपोजिट है, इसका मतलब है मुझे ऐड करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो 12y से 12y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 और 18 17x हो जाएगा, और 28 और 6 जो है वो 34 हो जाएगा। और x की वैल्यू के लिए मैं इस 17 को शिफ्ट कर दूंगा, तो 34 डिवाइड बाई 17 विल बी इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब मेरी मर्जी है, मैं दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y की वैल्यू मेरे पास ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 6 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4, और -4 y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप देख सकते हो कि यहाँ भी y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ भी y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है। क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व लिखा था, ठीक है। दोनों मेथड से सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं थी, चूँकि ये एग्जाम्पल थी इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट विद ओनली वन मेथड, चूज़ इट। either you want to go with substitution or elimination, it's up to you. Substitution में थोड़ी वर्किंग ज़्यादा होती है, elimination में थोड़ी वर्किंग कम होती है। These are the two common methods for solving simultaneous linear equations, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस एग्जाम्पल के बाद हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी मैंने जो है वो इस वीडियो में कवर कर लिया। तो वी हैव 7 क्वेश्चंस। 7th क्वेश्चन जो है इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज़ अ ग्राफ प्लॉटर, तो वो हम नहीं करेंगे। तो वी हैव टू डू 6 क्वेश्चंस। तो दीज आर द 6 क्वेश्चन। इंशाल्लाह इसमें से 2 to 3 इंशाल्लाह विल बी सॉल्विंग इट इन आवर क्लास, एंड द रेस्ट विल बी योर होमवर्क। सो आई होप दिस मेथड इज़ नाउ रिवाइज। इसको अच्छी तरीके से वीडियो को दोबारा देख लेना, इस मेथड को अच्छी तरीके से दोनों मेथड्स को रिवाइज कर लेना। इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दीज मेथड्स इन आवर क्लास 2, तो वहाँ भी थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। तो आई होप ये बुक की जो कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह कुछ क्लासेस के लिए इस तरह मैं करूँगा तो ये हमारी
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यू हैव टू बाय दिस बुक सो दैट वी कैन कैरी ऑन स्मूथली. ठीक है, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.